Okay. Good evening, everyone. नमस्ते आप सभी को. वीवा इंटरनल ट्रेनिंग पैन इंडिया, देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी साथी. और अब हमारे साथ आज के सेशन में प्रेजेंटर है सुमना दी. सुमना दी, वेलकम. हम सब उनको जानते हैं. आज का सुंदर टॉपिक लेके आई हैं वो हमारे लिए. एंड आप सभी से रिक्वेस्ट रहे कि प्लीज try and see how much we can appreciate this topic, not just the topic but also her efforts. और कोशिश करिए जिनको जितना मालूम है और थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपस में. पॉइंट यही है कि जब हम चर्चाएं करेंगे तो मन में इच्छाएं आएंगी कि और पढ़े और जाने और समझे. इन सबको लेके, इन आइडियाज को लेके सुमना दी आपके पास आते. प्लीज प्रणाम के साथ स्टार्ट करिए. ऑल योर्स मैम. Thank you so much, Tapan. Thank you so much, team. And thank you, internal training lead, Arnav, for giving me this opportunity. He asked me which kind of topic I would like to maybe take or discuss in the during internal training. I just was in thought which one to take. Then suddenly I thought, okay, let's take Sister Nivedita, because उनके बारे में बहुत ज़्यादा discussion we generally do not do. Who is very close to Swami Vivekananda, inspired by Swami Vivekananda, and so many जितना universal possibilities हमको या other कोई भी possibilities हमको स्वामी विवेकानंदा में दिखता है, most of them we can see in her also, maybe even in more intensity. So many unique possibilities which are more intent in her. तो आज मैंने इसलिए I thought of making of no slides, because no slide I think can describe her or maybe limit her. So we will just discuss regarding her, about her. What I know I will share, and I would like to just keep on asking you so many questions so that we all remember her in our mind, and we can ponder upon her qualities, ponder upon her life. Her life is not very long. She lived only 44 years, 1867 to 1911. She lived this much life only, but it was full of enthusiasm, energy, encouragement, and selfless service. तो मैं सबसे पहले इसीलिए शुरू करूंगी, क्या मुझे कोई उनका बिफोर इनिशिएशन का, व्हाट वाज हर नेम बिफोर हर इनिशिएशन? कैन एनीबॉडी टेल मी? मैम, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल. Margaret Elizabeth Noble. And somebody else, when उनका birth date, birth year क्या है? When she was born, where? Birth date है year I think 1867 में जी. Beautiful, beautiful. 1867. और डेट क्या है? आप ही का बर्थडे है 28 अक्टूबर. अरे ठीक है, मेरा बर्थडे. I was really lucky to share my birth date with her as her date. Thank you so much. So 1867, 28 October was her birth date, and as she named at that time Margaret Elizabeth Noble. क्या उनके मम्मी पापा का नाम कोई बता सकते हैं? Which is not very important. Still, मैं कुछ रीजन के वजह से पूछ रही हूँ. Anyone? मैं बता देती हूँ. उनकी मम्मी का नाम है मेरी इसाबेल हैमिल्टन, एंड पिताजी का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबल. और वो पैदा हुए हैं, द प्लेस वाज कॉल्ड नॉर्दर्न आयरलैंड, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड डनगैनन या डनगैनन, ऐसा ही कुछ होगा मोस्ट प्रोबेबली. मे बी आई एम नॉट वेरी गुड इन प्रोनाउंसिंग दैट. तो वहां पे वो पैदा हुए थे, इसलिए मैंने उनकी मम्मी पापा का नाम इसलिए पूछा. They both were so inclined towards humanity. ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ करना, कुछ हेल्प करना, हेल्पिंग इन एनी वे, सेल्फलेस सर्विस, रिलीजियस ओरिएंटेशन, ये शी हैज सीन इट फ्रॉम हर चाइल्डहुड. तो बिल्कुल बचपन से वो इसके साथ कनेक्टेड थे. और 67 में जब वो born हुए थे, during 1877 her father died. So it was only 10-year-old girl who has to maybe take care of her family, of her brother and sister, her mummy, her family, everything. तो ये सब मिला के उनके ऊपर बहुत ज्यादा
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, लेकिन उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डूइंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंड, सेल्फलेस सर्विस, ये हमेशा वो अपने दादू, अपने पापा के थ्रू फैमिली में उनके जेनेटिकल ओरिएंटेशन ये पूरा था। सो अब जब उनका छोटे से धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे, वो एजुकेशन के perspective में she was very much shining in education field. She first, I mean, after her studies, she started teaching in a school. छोटा सा स्कूल था. Then she thought of building one school of her own. She built it herself. वहां का टोटल एजुकेशन सिस्टम उनके हिसाब से चलता था, जहाँ पे वो बच्चों के साथ सब कुछ हैंड्स ऑन करना, जो हमारे एनईपी 2020 में बोला जाता है, उस टाइप का कि बच्चा खुद करे, हैंडसम, आई मीन होलसम डेवलपमेंट हो, ये सारे चीज वो स्कूल में सिखाते थे. बोलने की और करने की भी कोशिश करते थे. सो एज अ Irish woman who dedicated her life afterwards for India, उनका ये जो जर्नी है वो तब से स्टार्टेड था. तो she was almost into it. फिर ये पूरा जर्नी उसका जब चल रहा था, ड्यूरिंग दैट टाइम वी ऑल नो 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंदा अपना लेक्चर दे रहे थे. And on 11th September it was done. And after that 1895 during November month में that lady was called Lady Isabel. उनके रेसिडेंस में जब आए थे स्वामी जी, लंदन में, यूरोप में आए थे, लंदन विजिट कर रहे थे. He was there for some lectures. During that lecture, Sister Nivedita got the opportunity to meet him. And बहुत सारे टॉपिक्स में वो लेक्चर, वो जब कनेक्टेड हो रहे थे, सुन रहे थे, ड्यूरिंग दैट टाइम स्वामी जी के कुछ टॉपिक्स, उनके डिस्कशन पॉइंट्स उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा. कैन एनीवन टेल मी क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि विच टुवर्ड्स विच सिस्टर निवेदिता वाज अट्रैक्टेड? एनीवन? वेदांत ठीक है, और कुछ उसके कुछ पार्ट? वेदांता का ही तो लेक्चर था ना. बिल्कुल. तो वेदांता का विच आर द पार्ट्स, कौन से छोटे छोटे? अगर वेदांत, बिकॉज इट्स वेरी बिग थिंग, आई ऑल्सो डू नॉट अंडरस्टैंड वेदांत. नो, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम आएंगे तो छोटे पार्ट्स. हाँ, जो हमारे एसीपी के साथ भी कनेक्टेड है. एसीपी में भी हम देखते हैं, पाथवेज में हम देखते हैं. अब बताओ. अच्छा, बहुत सारा हिंट दिया. बताओ. डिवाइन. यस, डिविनिटी इन एवरीबॉडी, ये था एक टॉपिक. और क्या क्या था, कौन से पॉइंट्स उनको अट्रैक्ट किया था? डिविनिटी इन एवरीवन. और क्या था? फॉर मैनकाइंड. यस, सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड. ब्यूटीफुल. और कुछ था? नारी शिक्षा के लिए जो प्रयास किया, नारी शिक्षा. यस, स्वामी जी का नारी शिक्षा के ऊपर जो था उसको भी बहुत अट्रैक्टिव लगा उनको. एंड फाइनली स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस इन एवरीवन, जो हम बोलते हैं आत्मश्रद्धा, ये वाला चीज सिस्टर निवेदिता को बहुत अट्रैक्ट किया था. एंड ही देन जस्ट कनेक्टेड विथ हिम कि मुझे ये सब जानना है, देखना है, सीखना है. हम कैसे कर सकते हैं, आप बताइए, मैं कैसे आपके साथ ये सब चीज सीखने के लिए कनेक्ट करूं? सो देयर वाज वेरियस मीटिंग्स. उन्होंने बहुत सारे बात किया, बहुत सारे उनके लेक्चर्स हुए. लेक्चर्स में उन्होंने अटेंड किया, बहुत सारा चीज उन्होंने, उनके वो मतलब जिसको बोलते हैं व्हाट वी कॉल दैट, मतलब नॉट, आई एम नॉट, क्या वर्ड मुझे याद ही नहीं आ रहा है. मतलब उसको लेके क्वारल भी हो जाता था कि नहीं आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा शायद नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, वाद विवाद. थैंक यू सो मच. और लेकिन उन्होंने जब इंडिया के बारे में सोचा कि ये अगर इंडिया में जाएगी तो वो कैसे वहां पे काम कर सकेगी, इनको हम अगर वहां लेके भी जाएंगे, आई नो शी इज वेरी पावरफुल, स्वामी जी को लगा, लेकिन इनको वहां ले जाएंगे तो वो कैसे हमारे साथ मिल पाएगी, बातचीत कर पाएगी. क्योंकि सबसे पहले हमारा मेंटालिटी उस टाइम क्या होता था, व्हाट वाज आवर मेंटालिटी, हाउ वी थिंक,
हम लोग विदेशी को ये नहीं मानते थे ना, उनको हाँ। छूत छूत, अछूता। छूत, हाँ, ये वाला चीज, प्लस वो हमको हमारे घरों में जाएंगे, क्या Yes. पता वहां पे कोई हमको कुछ मान्यता देंगे कि नहीं, इनको कैसा लगेगा। Gender bias or mlech? क्या क्या, सॉरी है ना, Gender bias or Yes. mlech? हाँ, म्लेच्छ वाला जो फीलिंग है, छूत अछूत वाला, हाँ, और जेंडर बायस भी है कि एक लेडी वो एकदम वो इंडिया में जाके या कोलकाता में जाके बाहर वाले जो बैठक खाना बोलते हैं, she will be sitting there or maybe talking there or maybe she will run a school. Will anybody send their children, send their girls especially to that school? ये सब चिंता स्वामी जी के दिमाग में बहुत बड़े तरीके से घूम रहा था, बट ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग कि कैसे इतना पावर, ये पोटेंशियल को हम इंडिया में लेके जा पाए और इनको यूटिलाइज कर पाए। तो नाउ देन अ फेज कम्स बिकमिंग सिस्टर, कैसे वो सिस्टर निवेदिता बने, उसका एक फेज पे हम स्लोली अब आते हैं। देन स्वामी जी फिर से अमेरिका चले गए, फिर इंडिया आ गए, कंटिन्यूअसली सिस्टर निवेदिता उनके साथ कनेक्टेड थे, लेटर्स लिखते थे, बहुत कुछ पूछते थे, सवाल करते थे, ये सब उन दोनों का चलता था। नाउ फाइनली शी केम टू इंडिया। Can anybody tell me which of the year and when, more or less, आसपास का कुछ डेट या टाइम? Anybody? कब आए थे मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल? 1896 में ही आया। और कोई? थोड़ा सा गलत हुआ, 1890 है, 9 है, लेकिन उसके बाद I think 95, 1895. 1895 नवंबर में वो मिले थे। 1896 में आए थे ना? 1898 में जनवरी में वो यहाँ पे आए थे। तो 2 यस साल अर्नब बाद, प्लीज। 3 साल बाद। एक सवाल है, since I'm not aware, that is why I'm asking. आप कह रहे हैं कि विवेकानंद was apprehensive about Nivedita's acceptance in our country, but maybe I'm wrong. Vivekananda had such clear ideas and such tremendous बिल्कुल, श्रद्धा. Then that is the, हाँ प्लीज बोलो। apprehension, I think, was it there or not there? ये थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर मैं पाएंगे? बताती हूँ। अब स्वामी जी को आइडियाज तो उनको बहुत क्लियर था कि ये एक ह्यूज पोटेंशियल है जिसको कि हम लेके जाएंगे, वहां पे तो बहुत ही काम होगा, लेकिन उनको ये लगा था कैन शी बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन? अगर नहीं कर पाए तो कितना चोट इनको पहुंच सकती है, इस सब के बारे में हो सकता है क्या उनको थोड़ा सा लगा होगा इसके बारे में। मे बी दैट इज द रीजन 95 से उन्होंने हाँ तुम आ जाओ ये बोलने में 3 साल लगा दिया होगा। इज दैट पॉसिबल? थैंक यू, मेक सेंस। हाँ, तो ये मतलब ये ऐसा नहीं कि मैंने ये सारा पढ़ के मुझे आइडिया हो रहा है, मतलब पढ़ के और इसको कनेक्ट कर करके भी मुझे ये लगा। एब्सोल्युटली राइट, स्वामी जी के जो आइडियाज थे बहुत ही क्लियर थे, लेकिन वो जो आएंगे और फिर वो उनको चोट पहुंची भी थी, काफी सारे चोट उनको भी झेलना पड़ा। शी फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग कमिंग टू इंडिया, लेकिन फिर भी वो तो चलो वो लेकिन पहले से स्वामी जी बता भी दिया था ना, बता भी दिया था, और उनका भी इतना पावर था कि वो ये सब कुछ एकदम चुपचाप करके बहुत सारा काम, डेडिकेटेड हर लाइफ टू इंडिया। सो नाउ दिस टाइम कम्स कि 1898 में वो भारतवर्ष में आ गए, जबकि उनको मतलब हमेशा वो जिनको बोलते कि हर रोज उनको लगता था कब मैं जाऊं, लेकिन वो फिर सीधा जब आए जनवरी में आए, और फिर उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंगली फिर जब स्वामी जी के साथ उनकी बातचीत चली, क्या करना है कैसे करना है ये पूरा आइडिया के बारे में उन्होंने बातचीत किया। फिर वो एक दिन माँ के पास लेके गए, वो अराउंड 16-17 मार्च था माँ के पास जब वो गए। तो कैन एनीवन टेल मी दैट स्टोरी, क्या हुआ था उस टाइम, क्या बोला था माँ ने उनको और कैसे गए थे वो स्वामी जी? ओके, सौरभ ने ना बोला उसको। सुचिरा दी आप सब कुछ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मुझे पता है आपको इस सब के बारे में काफी पता है, बाकी लोगों को भी थोड़ा ट्राई करने देते हैं। कुछ भी आपको पता है, कुछ भी आइडिया आ रहा है तो प्लीज बताओ, हम सब मिलके उसको भी तैयार करेंगे, को क्रिएट करेंगे, ताकि हम भूले नहीं कि स्वामी जी, अरे सिस्टर निवेदिता जो बाहर से हमारे देश में आए थे और हमारे देश के लिए सब कुछ दे दिया, still we maybe do not remember her that much.
हाँ बताओ हेमंत, आप शायद अनम्यूट कर रहे थे, बोल रहे थे क्या? हाँ मैम, थोड़ा सा मुझे जितना याद आ रहा है, हाँ मुझे ये लग रहा है कि जब निवेदिता माँ के पास गई तो हम माँ का नेचर, हमने जिन्होंने पढ़ा है हमको पता है कि, तो उनको मतलब ऐसा फील हुआ कि सी इज हर ओन मदर, मुझे जो लग रहा है कि आई मे बी रॉन्ग, तो मतलब उनको काफी अच्छा लगा सिस्टर निवेदिता को। और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन भी है मेरा, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आने से पहले जो स्वामी जी लेटर लिखते हैं ना सिस्टर निवेदिता को, क्या उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं? हेमंत, अभी अगर वो लेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, मैंने सच बात बताती हूँ, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा मैंने अभी नहीं पढ़ के नो आई हूँ, प्रॉब्लम, ठीक है? उसको मे बी सम अदर टाइम श्योरली वी कैन हैव, अगर अर्नव कुछ बोलते हैं तो उसको लेके कर सकते हैं। अभी उनका ओवरऑल एक लाइफ का हम देखते हैं टोटल सिनारियो। हाँ तनुश्री, आप कुछ बोल रहे थे, क्या आप इसके साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ माँ, बताओ। जब निवेदिता जी माँ के पास आई थी तो तब माँ ने निवेदिता जी को खुकी कह के बुलाई थी, क्योंकि बिल्कुल। हाँ माँ का नेचर ही ऐसे है, जैसे सर ने बोला, हेमंत सर ने। तो स्वामी जी को क्या लगा था कि माँ के पास लेके जाएंगे तो कैसा, मतलब वो कैसा हो सकता है, क्या माँ इसको, थोड़ा सा उनके दिमाग में भी थोड़ा चल रहा था कि एक तो विदेशी है, वो ब्राह्मण घर की विधवा है, तो कैसे ये वाला मीटिंग होगा। तो वो लेके गए, सब मिलके वहां गए, वो नीचे बैठे और सिस्टर निवेदिता को बोले कि माँ ऊपर होती है, आप वहां चले जाओ। तो वो सीढ़ी से वो ऊपर गई, और माँ ने तो तभी के तभी, वो क्या शीतल पाटी बोलते हैं जिसको बंगाल में ना, वो थोड़ा ठंडा सा होता है उसका फीलिंग, उस पे आप बैठो तो वो शीतल पाटी के ऊपर बैठे, पैर फैला के वो बैठे, खुकी आओ बैठो, अपने पास बिठाया। ठाकुर का सेवा उस टाइम शाम वाला सेवा हो चुका था, प्रसाद लेके आए, और मतलब बोला गोलाब माँ को, उनको बोला कि तुम लेके आओ, उनको हाथ में दिया, और उसी प्लेट से थोड़ा बहुत खुद भी खाया। तो इसका मतलब स्वामी जी एकदम निश्चिंत हो गए कि माँ ने अगर एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स मोरलेस पूरा हमको 100 में से 100 मिल गए कि हम इनको ऑफ कोर्स ये काम शुरू कर सकती है। तो उसके बाद से माँ, और जैसे हेमंत आपने बोला कि माँ का जो नेचर था वो एकदम सॉफ्टली सबको एक्सेप्ट कर लेना, मैं सबका माँ हूँ, ये वाला फीलिंग उनमें भी, सिस्टर में भी आ गया था। तो निवेदिता में ने भी ऐसा ही बोला कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी और के पास आई हूँ, मुझे लगा अपनी मम्मी के पास ही, माँ के पास ही मैं आई हूँ। और मैं जब वो नहीं होते थे उनके पास, तब वो बोलते थे कि मैं माँ को मिलना मिस करती हूँ। और सबसे पहले वो आके कहाँ रुके थे? बोसपाड़ा लेन में, जहाँ जो कि उद्बोधन, अगर आप में से जो गए हुए हो, उद्बोधन के घर से थोड़े से दूर में निवेदिता रुके हुए थे। 16/2, अभी शायद वो 16/2 है, तब 16 नंबर बोसपारा लेन था। तो दैट बोसपारा लेन में शी वॉज स्टेइंग देयर, और माँ से मिलने आते थे। तो इस तरह से वो वहां से तो उनका मिलना हो गया। तो ये भी एक मजेदार कहानी है कि एक विदेशी, जिसको अभी तक हम बोल रहे थे कि म्लेच्छ है, क्या पता क्या खाते हैं, क्या पता क्या करते हैं, लेकिन माँ ने इतना प्यार से उनको एक्सेप्ट कर लिया। ना एक सेकंड छोटा सा स्टोरी मैं पूछना भी चाहूंगी, फिर मैं बाकी ऐड कर लूंगी। उनके वहां जो रहते थे, गोपाल माँ रहते थे उनके पास, उनको थोड़ा सा देखभाल करना, खाना पीना बना देना। क्या आप में से कोई बता सकते हो गोपालेर माँ को उन्होंने क्या बोला था शुरू? गोपालेर माँ उनको क्या बोला था? उसका वो छोटा सा स्टोरी किसी को पता है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग सा है, तो यदि आपको पता होगा तो बता सकते हो। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। गोपाल का माँ जो है ना, वो है विधवा है, छोटे से बिल्कुल, तो उनको बहुत ही रेस्ट्रिक्शन पहले। सुमना, আমি মহারাজজির সাথে কথা বলছিলাম, कोई बात नहीं, कोई बात মহারাজजी से बात कर रही थी, मैं सुना नहीं आप क्या पूछ रहे हो। नहीं। मैं पूछ रही थी कि गोपालेर माँ उनके साथ रहते थे ना शुरू शुरू में, वो 16/2 बोसपाड़ा लेन में, तो वहां पे क्या बोला था और क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं क्या? अच्छा, उधर जो घोषपाड़ा में जब बोसपाड़ा लेन में, हाँ। अच्छा, उधर क्या बोला था? हाँ, गोपालेर माँ ने क्या बोला था निवेदिता को? माँ को बारे में? ना ना ना, अच्छा मैं बताती हूँ।
अच्छा, वो तो आए थे, उन्होंने खाना बनाना था और उन्होंने पहले ही बोल दिया था, मैं जब भी किचन में जाऊंगी मेरे किचन के आसपास तुम नहीं आओगी, तुम लोग कुछ मानते नहीं हो, तुम लेच्छे हो, तुम लोग ये भी खा लेते हो, वो भी खा लेते हो, कुछ भी करते हो, ये तो क्या नौरेन है, मुझे बोला इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, रह रही हूँ तुम्हारे साथ, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं रहती। इस टाइप का कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो इसीलिए निवेदिता क्या करते थे, वो जो किचन के पास जो थोड़ा बढ़ा हुआ प्लेस होता था, बिल्कुल दूर, थोड़ा दूर से ही टच ना करते हुए किसी भी चीज को, वहां पे बैठे उसके साथ बात करती थी। और उस टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम शी स्टार्टेड लर्निंग बंगाली आल्सो, कि थोड़ा थोड़ा मैं एटलीस्ट आई कैन speak, I can understand and I can communicate with these people because they are so nice and maybe they do not understand English. और हाँ, इसके बारे में माँ के वहां पे भी हुआ था, वो तो थोड़े थोड़े तोड़ फोड़ का बांग्ला बोल रहे थे, लेकिन माँ और इंग्लिश के साथ जो भी बोल रहे थे माँ को सब कुछ समझ में भी आ रहा था, बिकॉज वो तो माँ है, उनको सब पता है, तो वो भी समझ रहे थे। तो गोपाल माँ के लिए भी शी स्टार्टेड लर्निंग बंगाली एंड डूइंग दिस वे। तो इसके बाद फिर उन्होंने इतना डेडिकेशन था, फिर स्वामी जी ने उनको इनिशिएशन के लिए बोला, ब्रह्मचर्य दिया। क्या कोई बता सकते हैं कि उनका इनिशिएशन कौन सा टाइम हुआ था, कौन मोरलेस डेट टाइम ये सब? सेम ईयर हुआ था जब वो आई थी। बिल्कुल। कौन सा मंथ में? जनवरी में आई थी और फिर कब हुआ था? नवंबर के आसपास थी। मार्च में, मार्च 25। 16-17 को वो माँ के पास मिल के आई, फिर 25 मार्च को उनका इनिशिएशन हुआ। इनिशिएशन के बाद उनका नाम हुआ निवेदिता, द डेडिकेटेड वन। ये स्वामी जी ने खुद उनका नाम दिया। और स्वामी जी का जो सपना था लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेन फोक के लिए, जो कि विडो हो सकते हैं, बच्चा यंग वुमेन हो सकते हैं, सबके लिए कुछ करने के लिए एक वुमेन ही चाहिए, क्योंकि वुमेन का जो प्रॉब्लम है, दे ओनली अंडरस्टैंड एंड नो इट बेटर। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, उनका जो बातचीत हुआ उनमें वो जो स्कूल करने का जो हुआ, उस दौरान उन्होंने बोसपाड़ा में हर एक घर में जा के वो क्या करते थे, सबके घर में नीचे खड़े होके सबको बुलाते थे कि तुम्हारे बच्चे को मेरे पास भेजोगे क्या? तो देयर वाज दैट बहुत ही ज्यादा स्नॉबिशनेस था कि अरे इसके पास हम कैसे भेजेंगे, और हमारे इतने सारे ये गर्ल्स तो कुछ गर्ल्स तो विडो भी हैं, मे बी दे आर ओनली 5, 6, 7, 8 years old, but they are widow, so they have to follow a lot of things, lot of rituals. No water during Ekadashi, no food in Ekadashi, no food in that, no water during that. तो ये सारे रूल्स इतने कड़क के थे कि कौन जाएगा पढ़ने, ये सोच के फिर भी she didn't accepted the defeat. She walked every day to every house कि आपके बच्चे को, गर्ल्स को मुझे दो, मैं बिल्कुल टच भी नहीं करूंगी, पास में नहीं करूंगी, कुछ खिलाऊंगी भी नहीं, ये सब कर, लेकिन आप भेजो। हम ये आप लोग जो सिखाते हो वो ही सिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ सुचिरा दी बताओ। कोई घर से ऊपर से ना वो गोबर जो होता है ना गाय का, जो ये वो घोल के ऊपर से डाल देते थे उनका माथा पे, सर पे, कि मत आ जाओ, मत आओ इधर। बिल्कुल पानी डाल देते थे, हाँ, गोबर डाल देते थे, तो ये सब करके, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और ड्यूरिंग पूरे ये पीरियड उन्होंने कोशिश करते रहे वो। और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक करके बच्चे का आना शुरू हुआ, और उसमें भी स्वामी जी का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था। एक मीटिंग में उन्होंने बोला कौन कौन अपने बच्चे को भेजोगे, हाथ ऊपर करो। तो सीधा उन्होंने सबका एक एक का, वो जो डिवोटीज होते थे गिरीश घोष और फिर और भी सब आप हाथ खड़े करो कि अपने बच्चे को हम भेजेंगे इसके स्कूल में पढ़ने के लिए। Then only slowly 1-2 children used to come, 1-2 girls started coming. और निवेदिता को हमेशा लगता था कि ABCD सिखाना या फिर ये बाहर का कुछ सिखाना ही बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहना चाहिए, रादर ये जो पार्टी बनाना, स्टिचिंग करना, अपने जो श्लोकास पढ़ाते हैं घर में, हिंदू घरों में, ये पढ़ाना, फिर सिंपली घर में मतलब घर को साफ करना, अपना कपड़ा फोल्ड करके रखना, ये सारे प्रोसेस वो चालू करते थे।
और यही सब सिखाते भी थे। तो एक दो करके बच्चा जब आना शुरू हुआ, वो सब खुद ही अपना डॉल सिलाई स्टिच करते थे, कपड़े का वुल सीविंग सीखते थे, स्टिचिंग सीखते थे, निटिंग सीखते थे, ये सब चीजें सीखते थे। तो धीरे धीरे इनके साथ फिर सुधीरा माँ का आना शुरू हुआ। माँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, फिर अपने डिवोटीज जो गर्ल्स है उनको बोलते थे कि आप जाओ उसके स्कूल में, अरे कोई बात नहीं, बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम निवेदिता के स्कूल में भेज दो उसको, क्यों नहीं भेजते हो, बहुत कुछ सीखेगा वो आपकी बेटी। ये करके वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे डिवोटीज को कि अपने बच्चों को वहां पे सेंड करे। तो यहाँ तक बोल के मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, नाउ टेल मी, जो एसीपी में हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं, एक दो बताओ कौन कौन से पॉसिबिलिटीज निवेदिता ने अब तक जगा लिया है। हीरोइक तो है ही, एब्सोल्युटली रेस्पेक्ट, एक्सपेंडिंग भी होता है, एक्सपैंडिंग और लिविंग इन हार्मनी, एवरीथिंग, सीकिंग परफेक्शन, बच्चों को कैसे आगे ले जाए, कि आगे कैसे लेके जाए, कैसे घर से निकाल सकते हैं, और क्या, और हाँ सौरभ आप बताओ। और ट्रूथ सीकिंग भी है। देखो उन्होंने तो ट्रूथ सीख किया, कौन क्या पसंद करता है, ऐसे ही चलो। कि इंडिया में आके अगर हम बोलेंगे कि एबीसीडी पढ़ाओ, तो वो बोलेंगे कि म्लेच्छों का भाषा हमारे बच्चे को सिखा दिया। ओके, श्रद्धा भी है, श्रद्धा ही है मैम, बेसिकली श्रद्धा नहीं होती कोई किस चीज पे श्रद्धा, ये थोड़ा सा अगर डिफाइन करोगे तो। कई स्वामी जी पे, इंडियन कल्चर पे, और जो ओवरऑल बंगाली कल्चर जो है, क्योंकि वो बंगाल में आए थे, तो बंगालीज का जो विडो होते हैं तो उसके क्या कल्चर होते हैं, अलग बैठाना, गर्ल्स को अलग बैठाना, ये सारे चीज वो करते थे। अब ये जब उन्होंने स्कूल शुरू किया, आई थिंक जो निवेदिता स्कूल से है वो, हाँ अंजलि आपको बोलना चाह रहे थे, बताओ। Engaging with culture and society. Absolutely right, absolutely। और कितना इंटेंसली उनको करना पड़ा, बताओ कैसे कैसे किया। कि दूसरे के कल्चर्स को समझना, वो भी डिफरेंट टाइप्स, और फिर उसको अडॉप्ट करके फिर उसी को मैनेज करके चलना, इट्स नॉट इजी ना। तो एक यूनिक, पूरा एक देश छोड़ के आ गए, मतलब जो कंफर्ट लेवल था, वहां का वेदर था, वहां का एटमॉस्फेयर था, वहां का अपना फ्रेंड सर्कल था, सब कुछ गया, लेकिन वो इंडिया में आना है, भारत माँ को अपना माँ समझकर यहाँ पे आ गए, और एवरीथिंग शी लेफ्ट बिहाइंड। और शी यूज्ड टू फील अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द हॉट समर इन द कोलकाता, क्योंकि वहां पे बहुत ही पिचपिचा सा गर्म होता है। ये सारे गर्मी को उन्होंने सहन भी किया और मानना भी पड़ा, एडप्टिंग भी आया ना, एडप्टिंग भी आया, बिल्कुल, एनवायरनमेंट, लर्निंग आया क्या, ऑल पार्ट्स ऑफ हर लाइफ। यस, वो तो आया, और कॉम्प्लेक्स सोशल चैलेंज भी है, जिधर लड़की को बिल्कुल छोड़ते नहीं थे पढ़ाई के लिए, लेकिन उन्होंने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और वो वाला सब कुछ, वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, सारे गर्ल्स को, डिवोटीज को इकट्ठा किया, उनके बच्चों को इकट्ठा किया, फिर वो धीरे धीरे करना शुरू किया। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन क्या हुआ, वो अपने जो स्कूल बनाया था उन्होंने बोसपाड़ा लेन में, फर्स्ट उनके घर में ही था वो, वहां पे उन्होंने माँ को इनवाइट किया। तो जो शायद निवेदिता स्कूल के साथ जुड़े हो या वहां से पढ़े हो, वो शायद कैन टेल मी, कैन एनीवन नरेट मी द स्टोरी, क्या हुआ था उस दिन, क्या क्या किया था उन्होंने, व्हाट ऑल शी डिड। कोई भी नहीं, अर्नव आप बताना चाहोगे। पहले तो माँ को एक आसन से बैठाया अलग से, वो भी उन्होंने नहीं ये किया, बच्चों से ही वो करवाया, क्योंकि वो छूने से माँ को मैंने बैठना मुश्किल होगा बाय चांस। और उससे पहले का जो प्रिपरेशन है, प्री कमिंग ऑफ माँ, ये वाला पोर्शन कोई बता सकते हो क्या, क्या क्या किया होगा। साफ रखना, और ये क्या सजाया था वो, हाँ फूलों से सजाया था, और पूरा दिन भर खाली कूद रहे थे, सुबह से कि शाम को माँ आएगी तो कूद रहे थे, ये साफ करो, वो साफ करो, ये खाना बनाओ, वो खाना बनाओ, ऐसे करो, वैसे करो, ये सब उन्होंने किया था फिर। और करके, और खुद भी बिल्कुल जो सुचित्रा दी ने बोला, कुछ भी चीज खुद टच नहीं किया था, कि नहीं अगर बाई चांस किसी ने कुछ बोला
कि वो टच किया, ये किया, वो किया, वो दूर से खाली इंस्पेक्शन कर रहे थे और खाली एनकरेज कर रहे थे. तो दैट मीन्स हर लाइफ is completely dedicated not only to India, to everyone belongs to India. सबके लिए, माँ के लिए भी उन्होंने फिर वो सब रेडी किया. और जैसे सुचित्रा जी ने बोला, आते ही आसन भी बिछाया और सारे बच्चों से ही आप वेलकम करो, आप सॉन्ग करो, आप टीका पहनाओ, ये सब कुछ किया. और जो जो सीखा आप लोगों ने वो सब कुछ माँ को दिखाओ, ये सब भी उन्होंने किया. तो दैट वाज आल्सो अ फैंटास्टिक स्टोरी. अच्छा, अब जो धीरे धीरे आप उनके और एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ श्रद्धा. यस यस शशि सर, थैंक यू सो मच. बहुत ही श्रद्धावान थे वो एवरीथिंग इन इंडिया के लिए. अब ये बताइए कि वहां पे जब प्लेग हुआ तब उनका रोल क्या था, कोई बता सकते हैं क्या? व्हाट हैपेंड? प्लेग क्या था, कब हुआ था, क्या क्या किसने क्या किया था, स्वामी जी ने क्या किया था, सिस्टर ने क्या किया था, कोई बता सकते हो क्या? ये तो सारे सो साफ करते थे झाड़ू लेकर, ये इधर, क्योंकि उसी टाइम सबसे जरूरी था साफ रखना. लेकिन लोग डर से नहीं निकालते थे. स्वामी जी ने भी, सारे सन्यासी ने, सब ने वो झाड़ू लेकर जब साफ करने लगे, निवेदिता जी भी ऐसे ही किया था. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ सौरभ, आप कुछ डरा नहीं कि हाँ मेरा हो जाएगा. हाँ, सोचा था कि हाँ. बिल्कुल. और स्वामी जी ने जमीन बेचने के लिए तैयार था, पैसा लाने के लिए माँ ने मना किया था. हाँ, वो तो अलग स्टोरी, उस पे हम नहीं जाते. हो जाने माँ और स्वामी जी का है, ये निवेदिता का है, इसलिए. हाँ सौरभ बताओ. सुचित्रा मैम ने सब कुछ बता दिया. बेसिकली उनका जो मेन रोल था वो हाइजीन पे था. थोड़ा पास पे ले जाएंगे सर. पर्सनल हाइजीन पे ना, लोगों को उतना पर्सनल हाइजीन उस समय पे पता नहीं था, तो प्लेग तो फैल जाता था ना टच करते ही सारी चीजें थी. बिल्कुल. उन्होंने उसका मेन योगदान जो फिजिकल हाइजीन पे था. फिजिकल हाइजीन पे. बिल्कुल. हाँ अर्नब, आप कुछ बताना चाह रहे हो? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा. वुड यू अलाउ? हाँ, I surely will, and if I can answer, I surely answer, otherwise I will take time. नहीं, आपको तो पता ही होगा. मैं जनरली थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ. लेट मी आस्क उषा, ये जो सुमना जी का सवाल था, माँ को जब आना था और शशि सर कह रहे एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ श्रद्धा. देखिए, एक फॉरेन लेडी है, वहां पे इतना जेंडर का नहीं था. इंडिया में आके ऐसे कुसंस्कार, अभी तो हम उसको कुसंस्कार की तरह देख पा रहे हैं ना उषा, ये नहीं छुएंगे, वो नहीं छुएंगे, पर निवेदिता ने उसको दिखावे के लिए नहीं किया, राइट, दिल से किया. आपको क्या लगता है ये कहाँ से आया, क्यों आया? क्योंकि बहुत श्रद्धा करते थे. श्रद्धा मतलब आंखें मूंद लेना, आंखें बंद कर लेना? नहीं, क्योंकि उन निवेदिता जी नहीं चाहते थे कि माँ को कोई असुविधा हो खुद की वजह से, तो इसलिए हो सकता है. और ठीक है, माँ को असुविधा ना हो, उनपे कोई उंगली ना उठाए वगैरह वगैरह, ये हो सकता है. वो एक फियर हुआ, फियर के कारण आप बोल रही हो. कोई पॉजिटिव रीजन हो सकता है? सपना सरकार जी, आपको क्या लगता है? श्रद्धा का मूल क्या है, फियर ना प्रेम? अंजलि जी, आपको क्या लगता है? और ये प्रेम कहाँ से जगा? प्रेम है, प्रेम. ये प्रेम का मतलब माँ बच्चे से प्रेम अगर करे तो उसकी बुराइयां भी तो अपना लेगा ना. हाँ बिल्कुल. वो लगेगा जब बड़ा हो जाएगा वो अपने आप चला जाएगा. तो आई मीन मुझे पर्सनली ऐसा लगा सुमना जी, मे बी द लव दैट वाज जनरेटेड बाय विवेकानंद इन आवर हार्ट, जो स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने निवेदिता के आंखों के सामने जिस इंडिया की छवि जागृत कर दी थी, मे बी दैट्स व्हाई शी फेल्ट कि विद ऑल हर वीकनेसेस दिस इज माइन. अंधकार से लड़ना रास्ता नहीं है, करते करते हम लाइट की तरफ जा सकते हैं. यस, ऑफ कोर्स. हाँ, वो भी है. और अर्नब जब फास्ट उन्होंने मिले थे, वो भी तो उन्होंने देखा कैसे एक्सेप्ट किया. हाँ, एकदम. वो भी तो है ना.
वही मैं बोलने जा रही थी अभी। तुम जब बिल्कुल। किसी का घर जाओगे, तुम्हें इतना प्रेम से एक्सेप्ट करे, तुम क्या करोगे उस टाइम? हम भी क्या होगा? reciprocate तुम्हारा प्रेम भी उतना ही होगा ना। बिल्कुल। एक हाथ में तो नहीं होता है, माँ भी उतना ही प्रेम दिया, जिसलिए उनका इतना प्रेम, इतना मतलब फेथ। जहाँ पे स्वामी जी- स्वामी जी का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या पता क्या हो सकता है, क्या मतलब रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या होगा इन दोनों का। ये फिर भी स्वामी जी का बहुत he डर was- था क्या हाँ, होगा, डर था, लेकिन वो उन्होंने नीचे थे। ये हो गया था। I have बिल्कुल। taken 4 minutes. Thank you so much. शशि जी बोलना चाहिए। हाँ, शशि जी बोलिए। यू आर म्यूटेड शशि जी। अनम्यूट कर लीजिए सर। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है ये भगिनी निवेदिता का अपना संस्कार भी था, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है उनके पिताजी भी एक एलीट क्लास के प्रीस्ट थे यस चर्च में। यस। तो ये उनका भी अपना खुद का भी संस्कार था, और माँ की ऐसी पर्सनालिटी थी कि वो किसी को भी अपने उसमें मतलब अपने वो प्यार में बांध लेती थी। बिल्कुल वो उसका भी बहुत बड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एब्सोल्युटली राइट ऑन टारगेट। जी हरिओम जी बताइए। एक पॉइंट और निकल के आता है कि स्वामी विवेकानंद निवेदिता जी का लाइफ को लेके एक प्रश्न चल रहा था जिसको वो ढूंढने का प्रयास कर रही थी। और दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि कई सारे उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, क्योंकि वो आयरलैंड की रहने वाली थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम देखना, और कई सारे प्रश्नों के उनके जवाब अधूरे रह गए थे। और जब उनके प्रश्नों के जवाब स्वामी विवेकानंद जी से मिले, तब वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनने के लिए प्रशस्त हुई। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ऐसा ही हुआ था लगभग। बिल्कुल, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम वो जब लंदन इंग्लैंड में थे ना, उस टाइम उनका मतलब फ्रेंड्स ही वही सब थे, बहुत ही ज्यादा मतलब लिबरेटेड पर्सनालिटीज ही थे, है ना। तो जिनका की डिस्कशन भी इसी टाइप का होता था, कैसा ये वो इधर उधर, और बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन उनका जैसे स्वामी जी का भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो अपने गुरु के मिलने के बाद ही सारा आंसर मिला था उनको। तो निवेदिता भी वेट ही कर रहे थे कि मुझे भी कोई ऐसा मिले, और जो कि उनको स्वामी जी जब मिले, उनका डिस्कशन हुआ, देन ओनली इट ऑल रिजॉल्व। और स्वामी जी के हर एक बात में, हर एक फीलिंग में, हर एक श्वास में शायद भारत बसा होता था। दैट इज वन ऑफ द थिंग। तो ये वाला फीलिंग जब निवेदिता को टच किया, वहां से उनका वो फीलिंग आना शुरू हुआ कि देयर इज समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एनर्जेटिक अबाउट भारत, अबाउट इंडिया। आई शुड गो देयर। तो इसीलिए वो बार बार कोशिश कर रहे थे आने का। लेकिन यस, 3 साल का स्वामी जी ने भी उनको टाइम दिया कि भाई तुम सोच लो थोड़ा सा, क्या करोगे, हमारे वहां ये है वो है, ये थोड़ा सा काफी कुछ उनका इंडिकेशन भी उन्होंने दिया था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बोला नहीं, मैं तो जाऊंगी, मैं तो करूंगी। यस, आफ्टर दैट Actually, too much प्रेम, too much faith to her guru. यस इतना गुरु भक्ति इतना प्रबल था। उन्होंने गुरु ने जो बोलेंगे, गुरु का पास ही रहूंगी बिल्कुल। करके। जिसका वजह से जिस कारण से स्वामी जी को जब वो आप ठाकुर के बारे में कुछ लिखो, आप इतना जानते हो, इतना कुछ, उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि क्या पता मैं कुछ अच्छा करने जाऊं और मैं बुरा कर दूं, इसलिए नहीं करूंगा। तो ये जो प्रेम, ये वाला उनके लिए भी उनकी भक्त जो है सिस्टर निवेदिता का था। एंड दैट इज द रीजन पूरा नेम भी उन्होंने पूरा सार्थक किया, निवेदिता, जो कि सच में निवेदित प्राण थे और कुछ भी कर सकते थे। और खाली एजुकेशन में, बच्चों को पढ़ाने में नहीं, देयर आर सो मेनी फैकल्टीज शी टुक इंटरेस्ट इन। कैन एनीबडी नरेट आचार्य जगदीश चंद्र बोस के साथ उनका क्या रिलेशन था, क्या किया था उन्होंने जगदीश चंद्र बोस के लिए? उनका जो थ्योरी था उसको पेटेंट करवाने में उन्होंने बहुत उसकी कोशिश करी थी। Yes. ये उनके नाम से पेटेंट करवाया जाए। Yes. लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन आर्ट को, सबको उन्होंने वो जब फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया।
और कांग्रेस की एक्टिव मेंबर भी बनी वो बाद में। हाँ, एक्टिव मेंबर बनी, हाँ, तब बनी। उन्होंने बेलूर मठ के साथ उनको छोड़ ये दिया। करना पड़ा, छोड़ना पड़ा रिलेशन, बिल्कुल। क्योंकि हाँ तो जगदीश चंद्र बोस का जो हम बात कर रहे थे, उनके काफी सारा राइट अप्स वो चेक करके ठीक कर देते थे, किस तरह से लिखने से ये रॉयल इंस्टीट्यूट, आई थिंक उसका नाम है, लंदन में जो था, वहां पे आपका ये जो ट्रांसलेशन उनका था जगदीश चंद्र हाँ बोस। हाँ, माइक्रोवेव ये वाला के ऊपर भी उनका टॉपिक था। तो ये सब चीज में लिखने का और राइटिंग जो किया उसको ठीक करने का काम वो दिन दिन रात रात भर निवेदिता कर देते थे। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जगदीश चंद्र बोस निवेदिता से बहुत ज्यादा छोटे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनको खोका बोलते थे। इन बंगाली खोका मीन्स छोटा बेबी, द पर्सन हु इज यंगर देन मी और मे बी क्वाइट यंगर देन मी, लेकिन वो उनको खोका बुलाते थे। और वो दोनों का बहुत ही ज्यादा मतलब माँ बेटी जैसा रिलेशन भी होता था। कोई आता था, कोई कुछ बनाना खिलाना कुछ करना, उनके घर में आना जाना। जगदीश चंद्र बोस की वाइफ के साथ भी उनका बहुत ही बातचीत होना, कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा था। एंड एज वी ऑल से, एज यू सेड कि आर्ट में, क्राफ्ट में, सभी चीज में वो कहीं पे भी जाते थे, वहां का इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या है नोट करते थे। वो जब अजंता इलोरा गए, वहां पे भी उन्होंने वो सारा चीज नोट किया। एवरीवन, आई थिंक नंदलाल बोस, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, नंदलाल बोस को उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली ये सब पॉइंट्स के ऊपर रिसर्च करने को, देखने को, इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करने को भी बोला था, जो कि बाद में उन्होंने किया भी था। तो ये सारे राइटर्स, पेंटर्स, ये सारे हैं जो कि उनके आइडियाज से इंस्पायर्ड है। एंड फाइनली उनको हमेशा लगा कि अगर भारत फ्री नहीं हो पाएगा तो शायद इसका जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, वो पूरे तरीके से वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। एंड फॉर दैट व्हाट शी स्टार्टेड connecting with Congress, she started giving lectures to various political प्लेटफॉर्म्स, सबके साथ कनेक्ट करना, कैसे देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं, फ्रीडम फाइटिंग में क्या क्या कर सकते हैं, ये सब इंस्पिरेशंस। बिकॉज ऑफ आयरलैंड वाज आल्सो दैट ड्यूरिंग सम टाइम आयरलैंड वाज आल्सो अंडर ब्रिटिश रूल, तो उनको भी ये फाइटिंग झेलना पड़ा, उनको पता है इसके बारे में। शी ऑलवेज एनकरेज्ड everyone to first get rid of Britishers from our country. ये वाला चीज में सब हमेशा उन्होंने एनकरेज किया। एंड दैट इज द रीजन फाइनली उनको क्या करना पड़ा, बेलूर से डिस्कनेक्ट होना पड़ा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि महाराज जी लोग जो थे उन्होंने डिस्कनेक्ट किया इनसे, हमेशा वो कनेक्टेड थे उनकी सारे फैसिलिटीज को, या फिर उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखते थे। स्टिल उनका आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट था कि पहले हमको स्वाधीन होना है, फिर हम ये वाला काम आगे बढ़ा सकते हैं जो भी हम सोच रहे हैं। और बाकी पढ़ाई लिखाई इसमें तो हमेशा वो बहुत ही डेडिकेटेड थे, हमेशा कोशिश करते थे कि कैसे विमेन फोक अपने लिए कुछ कर सके। आज भी, आज के डेट में भी बाग बाजार में उनका जो निवेदिता स्कूल है, वहां पे आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई हैवंट नेवर विजिटेड द स्कूल, आई थिंक वो लोग नीचे बैठ के और एक छोटा सा पीढ़े रख के उसके ऊपर लिखाई पढ़ाई करते हैं। क्लासरूम के बाहर उनका शूज रखा हुआ होता है। आई एम सॉरी रमानंद सर, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? आई एम वेरी कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग इन हिंदी, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं नहीं समझा, लेकिन कोई बात नहीं, आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि हमारा टीम बहुत हिंदी चर्चा है, कोई बात नहीं। And I know you have read so many things about Swami Sister Nivedita. Can you please tell us something about her, what you know? Actually read much to tell that, but I will say I used to quote about her during our interactions, saying that someone from Ireland, I used to refer her original name as Margaret. So I used to say that someone born in Ireland as Margaret, and then listening to Swami Vivekananda, and then deciding to take
him as a spiritual guru, not just taking but following him to India and serving for Swami Vivekananda 100 years before. So I used to ask them, can you imagine what it is to be 100 years before somebody following Swami Vivekananda and then taking up his goals as her goal and trying to do something for our country. So what are we doing? So that kind of thing I have shared, but I know she started the schools and all, so I will not try to say I have read much. So she is very inspiring. So that's what all my knowledge on that. So Thank you so much. Thank you. Thank you so much. So that's, I mean, maybe nobody of us read everything about Sister Nivedita, but at least some of the things we read, and we are co-creating a platform here. And so that maybe our younger generations who are present here will be knowing about her. And we all will start thinking about her differently. Because we read a lot of things about Swamiji, but if we read about her, if we want to know her, then only we can try to, we will get the idea how much she, what we say, faced, and how much challenging the situation was at that time, as you said, to leave a country, to be established in another country, just to follow the path of his guru and fulfilling his dream. That is one of the things you pointed out very nicely. So that is about her. So in every field of India, she is present, and this, she also has a lot of names. Can anybody tell me कौन-कौन से और कौन-कौन से नाम है उनका, other than Sister Nivedita और Bhagini Nivedita छोड़ के? Yes, Saurabh. Maybe रविंद्रनाथ टैगोर के साथ तो कभी मिली थी और बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनकी, बहुत तो वो रिस्पेक्ट उनका करते थे। करते थे। तो जब उनकी डेथ हुई दार्जिलिंग में, तो शायद तब जाके वो वहां गए, तो उन्होंने शायद उन्हें लोक माता कहा था शायद ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ठाकुर परिवार, हाँ सपना बताओ आप। माँ तो उन्हें खूकी बुलाती थी ना, माँ तो खूकी बुलाती थी, बिल्कुल। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको लोकमाता निवेदिता बोलते थे, और वो भी यही मानते थे कि अ पर्सन हु लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड एंड कमिंग टू अनदर कंट्री। आई मीन, इसमें बहुत ही ज्यादा उनके बारे में भी हाँ, लोकमाता, एब्सोल्युटली राइट अर्णव। तो ये वाला उनका एक भी नाम है, लोकमाता निवेदिता, और सभी कोई उनको उनके स्कूल में सिस्टर करके बुलाते थे, और उनके साथ बहुत ही अच्छा सा उनका इंटरेक्शन भी होता था। तो ये है उनके लाइफ का एक पार्ट। और बिकॉज ऑफ कोलकाता में उनका जो एटमॉस्फेयर था, उनको बहुत ज्यादा सूट नहीं करता था, तो कभी कभी वो मे बी एक दो बार वो लंदन में चले गए, यूएसए में, अमेरिका में गए टू कलेक्ट मनी फॉर इंडिया, कि इंडिया में ले आके वो पैसा कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। रिगार्डिंग दैट शी ऑलवेज हैड अ बिग थिंकिंग इन हर माइंड। यस जॉय। दार्जिलिंग में भी रहते थे ना? दार्जिलिंग में भी, है। बिल्कुल। हाँ जॉय बोलिए। Yes. So actually, just as you were saying that she has done a lot for the India. Just remembering one incident that being a student of science. So I come to know that one of the best science universities in India is Indian Institute of Science, Bangalore. So while the Indian Institute of Science, Bangalore was establishing, right? So Swamiji was actually first told this thing to, at that time, to Mr. Tata. So Tata was trying to have an appointment with then the Viceroy, but he was not getting the appointment. So Swamiji told to Nivedita to go and help him, correct? And Nivedita went to Mr. Tata, and somehow she was able to have the appointment with Mr. Tata, with the then Viceroy. But what happened? The Viceroy outrightly rejected the Tata's proposal, that no, what India will do for having science and technology. And then it happened, all the proposal got rejected, and then still Swamiji was having a lot of persuasion to Nivedita to help
to Tata to how to have this actualization of this science university. So when Nivedita, there is a written documented that when Nivedita went to London, and as I come to know through the various writings, that she was a very influential person in Ireland, and she has a lot of connection with the government of education in London. So she actually wrote this letter to one of the education department, very crucial person, that please help Mr. Tata to have again connect with Lord Curzon at that time, the Viceroy, and help him to establish the IISc Bangalore, at that time the Indian Institute of Science. And ultimately it got, after the Swamiji passed away, then Tata also passed away at that time, probably in the year 1908 or 1909. Ultimately that thing got materialized. So in that aspect, Sister Nivedita has a great role of, now it is IISc Bangalore, and probably one of the best institute in India. So that's I saw that. Let me add. Thank you so much for this enriching story. This I was also not knowing. I'm extremely sorry for that. This is really nice. So that means again that connecting, I mean, having Swami Vivekananda's dream of IISc by Tata, and then at least a part was done by Sister Nivedita again, and she tried a lot. Thank you so much for telling this. और कोई कुछ स्टोरी बोलना चाहते हैं क्या, जिनको जो पता है निवेदिता के बारे में? यस हेमंत। हाँ मैम, एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक्चुअली वो वही जो आपने बताया ना, स्कूल में जब बच्चों को पढ़ा रही थी, तो वो सभी बच्चियों से पूछती हैं कि आपकी क्वीन कौन है, महारानी कौन है। तो उस टाइम पर वीवर, मतलब हम लोगों की, वो बच्चे बोलते हैं कि सब क्वीन एलिजाबेथ। तो उस समय उनको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं, अरे आप लोग रह रहे हैं माता सीता की जन्मभूमि में, आप लोग रह रहे हैं, मतलब मदर इंडिया से हैं माता सीता और सावित्री, मैत्री, तो आपकी मतलब महारानी वो कैसे हो सकती हैं? तो वो बहुत सुनाती हैं। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि उनके अंदर मतलब कितनी श्रद्धा थी टूवर्ड्स मदर इंडिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी रोशन बताइए। ऐसा ही इंसिडेंट इधर का है, महाराष्ट्र का। जब निवेदिता कोलकाता से नागपुर और यहाँ एक अमरावती में उस टाइम से पुराने सालों से ना एक यूनिवर्सिटी है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ यूथ आते थे। अब इन यूथ से मिलने के लिए पूरे भारत भर से लोग आते थे नागपुर और अमरावती में, उनको मोटिवेट करे। काफी रिवोल्यूशनरी लोग भी आते थे। अब जब निवेदिता आए तो वहाँ कुछ कोई मैच चल रहा था, तो वो मैच जीतने के बाद है ना, वहाँ के जो खिलाड़ी थे, जो प्लेयर थे, वो हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे बोलते हैं। तो निवेदिता वो देखते हैं। फिर शाम को उनका लेक्चर होता है, तो शाम को वही यूनिवर्सिटी में वो बोलते हैं कि आप ये क्या हिप हिप हुर्रे अंग्रेजों को बंदरों जैसे कर रहे हैं, आप तो भारतीय है, हमारे भारतीय इतने गर्व है। तो आप बोले, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, जय भवानी, जय शिवाजी, है ना, तो वंदे मातरम, ऐसे स्लोगन उन्होंने बोल के सब लोगों को बोला कि हमें ये स्लोगन बोलने हैं, हिप हिप हुर्रे बोलने से आपका कुछ भला नहीं होगा। ग्रेट। चलो देवावती मैम, आप कुछ बताना चाहते हैं स्टोरी? Yes, I wanted to say that I don't know इस विषय पर आलोकपात हुआ था या नहीं। जो बोस इंस्टीट्यूशन है इन कोलकाता, it was made with the help of Bhagini Nivedita, and it made Acharya Jagadish Chandra Bose, and आचार्य जी इतना भगिनी निवेदिता के साथ इतने जुड़े हुए थे और इतना इंस्पिरेशन उनसे मिला था और इतना मतलब उनको हेल्प किया था कि ये बोस इंस्टीट्यूशन से घुसते हुए पहला ही एक जो स्टैचू मिलता है वो भगिनी निवेदिता जी का है। इतना मतलब उनके ऊपर इतना श्रद्धा था, उनको प्रकट करने के लिए ये इन्होंने किया था। तो इतना ही मुझे बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो इसीलिए आज मैंने स्लाइड नहीं रखा था, कोई स्पेसिफिक चीज को लेके डिस्कशन नहीं किया था। एटलीस्ट फर्स्ट लेट अस नो हर, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये आज का इसीलिए इम्पोर्टेंट था। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे क्या? जी रोशन बताइए। अब सेशन कंक्लूड होने ही वाला है, तो स्वामी जी के जीवन के अंत में जब स्वामी जी का अंतिम समय नजदीक आता है, तो वो
निवेदिता जी को बुलाते हैं और वो इनडायरेक्टली बताते हैं और निवेदिता के पैर पानी से धोते हैं। वो कुछ एक पूजन जैसा होता है, निवेदिता के पैर पानी से धोते हैं एज ए डिसाइपल, कि देखो गुरु अपने शिष्य के पैर धो रहा है, और वो कुछ हिंट देते हैं और उसके 1 या 2 दिन बाद स्वामी जी अपना शरीर छोड़ के निकल जाते हैं। अच्छा, ये क्या मैं थोड़ा बताऊं? ये ऐसा है कि पैर नहीं धुलाते हैं ये स्वामी जी को, क्योंकि उनको पता था कि मैं तो 4 जुलाई को शरीर छोड़ूंगा, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया था। हाथ धुला दिया, हाथ धुला दिया था, हाथ पोंछ दिया था। तब निवेदिता ने पूछा था, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे मतलब मैं शिष्य हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला, अरे यीशु ने तो उसके पैर धुला दिया था। तब निवेदिता ने बोला, वो तो उनके डेथ के 1 दिन या 2 दिन पहले। तो स्वामी जी हाँ ऐसे मतलब हंस के निकल लिए थे वहां से, लेकिन ऐसा हुआ था। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे व्हाट तरुण, अर्नव आप कुछ बोलना चाह रहे हो? तरुण क्या? अच्छा, और एक है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हमारे जब फ्लैग्स रेडी हो रहे थे, हमारे जब सिंबल्स, इंडिया का सिंबल क्या होगा व्हेन वी विल गेट इंडिपेंडेंस, उसके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया था। वज्र वाला चिन्ह बनाया था, भारत माँ का पिक्चर, वो ड्राइंग भी अच्छी करती थी। भारत माँ जिनके हाथों में राइस बहुत सारे पीस ऑफ राइस थे, हाथ में आशीर्वाद था, ऐसा वाला भारत माँ जो एकदम मतलब माँ जैसे देखने में लगती है, वो पिक्चर सब और शुरुआत में मैडम उन्होंने इंडिया ट्री कलर का भी कॉन्सेप्ट उनका ही है, और शुरू में उन्होंने 108 लैंप अपने वो जो उन्होंने ट्री कलर का दिया था कॉन्सेप्ट, उसमें 108 लैंप, वो अशोक चक्र की जगह 108 लैंप उन्होंने रिकमेंड किया था। हाँ, डिजाइन में उन्होंने वैसा। दैट मीन्स ये हमारे जो सिंबल्स हैं उसकी डिजाइनिंग में भी, और आज के डेट में भी बोश इंस्टीट्यूट में वो वज्र का सिंबल होता है। मतलब मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे मैंने पढ़ा या सुना है कहीं से, तो वो वज्र का सिंबल वो मतलब क्योंकि जगदीश बोस बहुत ही कनेक्टेड थे, ये भी है। और फाइनली शी लेफ्ट फॉर दार्जिलिंग एट द एंड डेज, क्योंकि उनको बहुत ही तबीयत खराब रहती थी तब। सो 1911 13 अक्टूबर शी ब्रीथ्ड हर लास्ट। एंड वहां पे जो बना हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है, हियर लाइज सिस्टर निवेदिता हु गिव हर ऑल फॉर इंडिया। So that is all from my side. So let's, एक मैं छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगी आप सबको, कि ये सुनने के बाद यहाँ से अगर उन्होंने जो किया, जिस स्टाइल में किया, अगर हम उसमें से कुछ फॉलो कर सकते हैं तो वो क्या है? आई लाइक सिस्टर निवेदिता बिकॉज क्या क्या पॉइंट्स हैं वो अगर हम थोड़ा सा खुद ही, ये किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा, जस्ट फॉर रिफ्लेक्शन अगर हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। Yes, over to you, Tapan, over to you, Arnav. I hope you liked the session. Thank you so much. Arnav, बोलिए। I am not so sure. In the grave of Nivedita, is it not written Nivedita of Vivekananda or something like that? He used to sign like that. Nivedita Ramakrishna रामकृष्ण स्वामी जी निवेदिता साइन करते थे, लेकिन वहां पे ग्रेवयार्ड में जो लिखा है दैट इज हियर लाइज सिस्टर निवेदिता हु गिव हर ऑल फॉर इंडिया। All her letters she used to sign as Nivedita of yes Vivekananda, Ramakrishna Vivekananda, exactly. Thank you. All right, Tapan, yes. Okay, धन्यवाद सभी को। एंड सुमना दी, व्हाट अ लवली सेशन। आई होप आप सबको पसंद आया है। सिस्टर निवेदिता के बारे में जैसे दीदी ने बोला कि हो सकता है हम लोग थोड़ा सा कम पढ़ते हो, this session can be a great reminder. Let's read, let's find more about such a great soul who has served Mother India. And it's not just the duty, क्योंकि ये हमारी पार्ट है ना, हमारे एक ड्यूटी का ही पार्ट बन जाता है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को, जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उसको कितना अच्छे से जानते हैं। तो चलिए इसको भी, जैसे दीदी ने एक छोटा सा टास्क दिया, एक्टिविटी दिया है, इसको पूरा करते हैं, ठीक है।
और दीदी आप ही प्रणाम मंत्र के साथ एंड करिए, किसी को कुछ और बोलना हो, वोट ऑफ थैंक्स, अगर किसी को लेट मी आस्क समवन, आई थिंक यू नो इट Ramanan sir, why don't you do the honors, because you have been talking about Sister Nivedita earlier also and we have heard something from you in the past. आप ही थोड़ा सा बताइए, और साथ में सौरभ सर आप भी कुछ, आप दोनों आज के सेशन के बारे में, और कुछ भी जो आप लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं एज अ वोट ऑफ थैंक्स. फर्स्ट Ramanan sir, may I ask you? Okay, you're asking me to give the vote of thanks or Yes. the Anything, any closing thoughts before we wrap up? Okay, I would like to thank Sumana Manna ma'am for this wonderful. It's been part of Swami Vivekananda's legacy. I must say that Sister Nivedita's contribution to India. So your involvement was evident when you were talking about how proudly you were talking. Probably you felt it as a woman also, or that is what I felt. I don't know. So as part of Viva team, it is very important that we have an understanding of some of the key players who contributed to Swami Vivekananda's life and legacy, and your contribution in enriching the life and message of Sister Nivedita in this session is truly enriching for all of us. I'm sure people who have not heard about her would have enriched their knowledge base on Sister Nivedita through your session. So, and you also ended the session on time. In fact, I am taking a little more time. So you have been very conscious of that too, and involved everyone also, asking to share their thoughts. So a very humble gratitude for all your effort to take this up and conduct it so nicely. Thank you very much, Sumana ma'am, on behalf of everyone here. Thank you. So kind of you, Ramanan sir. And Hariom ji, आपने hand raise किया है? Yes. Very thankful to you and internal training team, because now from the sphere of Holy Trio, we are also going to learn through see works of Swami Vivekananda through the lens of disciples of Swami Vivekananda. Like we today we have covered life of Sister Nivedita. Many other also several disciples like Javier Kapal and stenographer, I'm forgetting his name, and Haley Bull, Haley sisters, like several because स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, इसका इम्पैक्ट समझने के लिए जब हम डिसाइपल्स को हम सुन के शिष्यों को थिंक और उनकी बातों को सुनने लगते हैं, तब हमें ये रियलाइज होता है कि नहीं, जैसे होता है ऐसे हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है. कहीं ना कहीं वो मिसिंग रह जाता है, और ऐसे समझने से शायद और भी अंदर चेतना जगे. थैंक यू सुमना मैम. So nice of you, Hariom sir. And Saurav sir, finally आप थोड़ा सा कुछ बता के back to Sumana जी for the pranam mantra. Yes, Saurav sir. Very thanks to same as Harim sir previously. The mic class. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. पहले तो आप लोगों ने ये टॉपिक चूज किया और उसी को दिया जिसका बर्थडे आता है उस डेट में, ठीक है. सो सिस्टर निवेदिता के बारे में जब भी मैंने तो बहुत कम पढ़ा है, इनकी वजह से मैंने कुछ पढ़ा है 2-3 दिन पहले ही सिस्टर निवेदिता को और गहराई से. बट जो भी पढ़ा है और जो भी इन्होंने कहा है और जो हम आज देखने के लिए मिला, मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो कि कोई औरत इतने दूर से अगर इस यहाँ बिलीव कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने ऊपर बिलीव, कि वी हैव समथिंग टू फील प्राउड ना. सो आयरलैंड, जैसे रमानंद सर कह रहे थे ना कि वो टीचर्स ट्रेनिंग में कहते हैं या कहीं भी कहते हैं, इस तरीके से संबोधित करते हैं कि कोई इतने दूर से आया है, वो इतना कर रहा है इंडिया के लिए, इतना सोच रहा है, तो व्हाई वी नॉट. सो इस थॉट के साथ भी थैंक्स टू समन्ना मैम. और मुझे कहीं सेशनों में से ये सेशन भी बहुत अच्छा लगा. सो क्योंकि
मैं किसी भी पहले मैं कहानियों में बोर हो जाता था, बट ये कहानी मुझे थोड़ी अच्छी लगी, और क्योंकि बिना स्लाइड के कहना बहुत, अब क्योंकि आदत पड़ चुकी है, कहना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। सो थैंक यू सुमना मैम, एंड थैंक्स टू इंटरनल ट्रेनिंग टीम to choosing this kind of very beautiful topics. Thank you सुमना मैम। Great, thank you Saurav sir. सुमना दी प्लीज प्रणाम मंत्र के साथ एंड करिए सेशन का। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन था, इसीलिए मैंने सोचा 1 घंटा ऑफ कोर्स हम बहुत अच्छे से करेंगे। शायद कुछ इंक्विजिटिवनेस भी आएगा कि अगर कोई इतना दूर से आके हमारे लिए इतना कर सकता है तो उनके बारे में जानना क्या हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। ये स्टेप लेके आगे बढ़ना है, एंड दिस इज ओनली द टिप ऑफ आवर लाइफ। ये तो मैंने बस जो पढ़ा उसका छोटा सा, उनके जो 44 इयर्स का लाइफ था और उसमें उन्होंने जो जो किया, इट वाज ह्यूज। ठीक है, तो विद दैट thanking all of you, everyone, external internal training team, internal training leads, thank you so much for giving me this opportunity. नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। And let us thank Ma also, Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padpadme Tayo Shritva Pranamami Muhurmu. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you everyone. You are